Associate sponsors Lloyd AC. आठवें चरण में हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों के चुनावों के लिए मतदान आज संपन्न हो गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 4 लोकसभा सीटों के साथ उपचुनाव जो सुजानपुर में होना है, उसके लिए भी मतदाताओं ने सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद कर दिया है। हिमाचल में आज हम बात करेंगे सबसे पहले आखिर वो कौन से दिग्गज चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा हिमाचल में दांव पर लगी है। हिमाचल के इन चुनावों में यूं तो चुनाव राजनेता लड़ रहे हैं, लेकिन इन राजनेताओं के साथ एक राजनीति पिता और पुत्र और पति और पत्नी की भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। यहाँ सियासत पिता और पुत्र की है। और मंडी की अगर बात करें तो मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में पिता और पुत्र, पति और पत्नी की सियासी प्रतिष्ठा भी हिमाचल के इन चुनावों में दांव पर लगी है। हिमाचल दी कुल 4 सीटां ते 7 मई नूं 8वें गेड़ तहत मतदान होया। सीट दर सीट जेकर गल करिए तो सब तो पहला मंडी लोकसभा सीट की गल करदे हां। मंडी लोकसभा सीट तो मौजूदा सांसद ने प्रतिभा सिंह, जो कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दी पत्नी ने, ते साल 2013 ਦੀ उपचोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ सांसद ਬਣੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ उपचोन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रतिभा सिंह ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 1,36,724 ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। 2014 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ प्रतिभा सिंह ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਮਪੰਥੀ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਕੁਸ਼ਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈਤਨ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ प्रतिभा सिंह ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 11,40,479 ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। शिमला, जिसनों के कांग्रेस दबदबे वाली सीट मनिया जाता है, इथों मौजूदा सांसद ने भाजपा के वीरेंद्र कश्यप भाजपा के इकलौते उम्मीदवार ने जो पहली बार यह सीट भाजपा की झोली विच पाने विच कामयाब रहे। साल 2009 की चोणों के विच उन्हें कांग्रेस के तनीराम शंडील नूं हरा के अपनी पहली चोण जीती। इस तो पहला अनुसूचित जाति के लिए राखवी इस सीट से कांग्रेस ने कदे हार का मुंह नहीं वेख्या। 2014 की इन्हां चोणों के विच भाजपा ने वीरेंद्र कश्यप नूं फिर तो अपना उम्मीदवार बनाया है। 5 सितंबर 1950 ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਵਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕਸ਼ਯਪ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰਾਗਟਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਗਟਾ ਰੋਹੜੂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਮਪੰਥੀ ਨੇਤਾ ਜਗਤ ਰਾਮ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ शिमला ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ सांसद ਵੀਰੇਂਦਰ ਕਸ਼ਯਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰਾਗਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ शिमला ਦੇ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰਸ 11,45,028 ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਮਤਦਾਤਾ ਰਹੇ 60,816 ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਤਦਾਤਾ ਰਹੇ 54,212। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ शिमला ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,335 ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ सांसद ਨੇ अनुराग ठाकुर। ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। 1998, 99 ਤੇ ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦੇਲ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ सांसद बनते रहे। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੂਮਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਐਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇ ਧੂਮਲ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ अनुराग ठाकुर ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ अनुराग ठाकुर ਨੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
अनुराग ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। अनुराग भाजपा युवा मोर्चा ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ BCCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਚਿਵ ਤੇ IPL ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ अनुराग ठाकुर ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਮਲਕਾਂਤ ਬਤਰਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀय ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਹੈ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ। 2014 ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਗੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਛਵੀ ਪਾਲੇ ਰਾਜਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤਦ ਧੂਮਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਮਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੂਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਚੋਣ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੋਹੀ ਹੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੜਕ ਮਿਜਾਜ ਤੇ ਅੜੀਅਲਪਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ। ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ 2014 ਦਾ ਚੋਣ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। हिमाचल के इन चुनावों में मुद्दों की बात करें तो जनता के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जरूर दिखाई दिए, लेकिन अगर नेताओं की बात करें तो नेताओं की जुबान पर भ्रष्टाचार का मुद्दा फोकस में इसलिए रहा क्योंकि कांग्रेस लगातार एक आरोप HPCA को लेकर भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और खास तौर पर सांसद का चुनाव लड़ रहे अनुराग ठाकुर के ऊपर लगाती रही। लेकिन वहीं पर भाजपा ने भी आरोपों में कहीं पीछे नहीं रहने की अपनी दशा को दिखाया, दिशा को दिखाया और उसने बात की कि VBS फाइल और उसके साथ वक्कामुल्ला चंद्रशेखर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आरोपों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह घिरे हैं। यानी बात करें जनता की तो विकास के मुद्दे के ऊपर वो कहना चाहती है, वो महंगाई से निजात चाहती है, वो रोजगार चाहती है, लेकिन नेताओं की जुबान पर वही भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है ये मुद्दे उठते तो जरूर हैं लेकिन सुलझते कहीं नहीं दिखाई देते। चुनावों के साथ ये मुद्दे भी गुम हो जाते हैं।
मतदान करने के बाद कुछ लोग हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानेंगे। पहली बार मतदान केंद्रों के भीतर आपको नई सुविधाएं दिखाई दे रही हैं, किस तरह की सुविधा और कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छा है, लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। आपने मतदान किया है, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से वोटिंग परसेंट को बढ़ाने की बात की जा रही है, सरकार को बनाने के लिए, अपनी पसंद की सरकार को बनाने के लिए क्या सोच जो है वो आपकी? जो हमारा पूरा लुक आफ्टर करेगा, जो हमारी पूरी मांगे मानेगा, आई थिंक उसी को वोट देना चाहिए, तो यही होना चाहिए। नेता आप कह रहे हैं कि अपनी पसंद का जो हो मजबूत सरकार दे सके, लेकिन एक बड़ी बात, महिलाओं की तादाद जो है वो ज़्यादा वोटों मतदान तक केंद्रों तक आ सके। आपको लगता है ये जो नई पीढ़ी है उसके भीतर ही है जज्बा, या पुराने जो लोग हैं उनके भीतर? नहीं, बिल्कुल पुराने लोगों के भीतर भी है ये सिर्फ नई पीढ़ी भी के भीतर तो है ही, मगर पुराने लोगों के भीतर भी ये जज्बा है। आप भी आज वोट देकर आए हैं, आपने बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और आई थिंक सो सरकार ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ काम अच्छा किया। दे आर गिविंग एसएमएस टू एवरीवन कि भाई आप जाइए। जो थोड़े से लेथार्जिक भी हैं इस बारे में, मेरे ख्याल वो एसएमएस के बाद सोच रहे होंगे नहीं हमें जाना ही चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज आवर राइट्स। एक रेड कारपेट सैल्यूट जो है आप देख रही हैं यहाँ पर भी दिया जा रहा है। श्याम शरण नेगी हमारे पहले मतदाता हिमाचल से हैं, उनको भी रेड कारपेट सैल्यूट, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि यू फीलिंग इम्पोर्टेंट, कि वोटर को भी इम्पोर्टेंस, मतलब जनरल पब्लिक को इम्पोर्टेंस मिल रही है ज़्यादा इस टाइम। बेहतर सरकार, बेहतर नेता और उसके साथ एक मजबूत सरकार जो देश के भीतर है, अब ये बात जो है मतदाताओं के भीतर भी फैल रही है, लेकिन उसके साथ एक बड़ा जज्बा जो भीतर दिखाई दिया है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी कोशिश की है, आदर्श चुनाव केंद्र जो चुनाव आयोग ने बनाए हैं पूरे प्रदेश के भीतर, हमने जैसे अभी यहाँ पर सुना, तो मतदाता भी ये महसूस कर रहा है कि वो भी इन चुनावों में मतदान करते हुए कहीं ना कहीं खास है, और इसलिए अपनी खास सरकार बनाने के लिए भी वो आगे निकल रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार, यानी मोदी की लहर में लोकसभा का ये चुनाव, भाजपा लगातार अपने तमाम नेताओं के साथ हिमाचल में भी ये दावा करती रही है, मोदी की इस लहर के साथ चुनावी वैतरणी हिमाचल भाजपा के नेता इस बार जरूर पार करेंगे और चारों की चारों सीटें जीतेंगे। लेकिन हिमाचल की सियासत का एक रंग हमने पहले भी देखा है, जहां पर सत्ता के साथ हिमाचल की जनता चलती रही है। सत्ता की इसी सियासत को क्या लोकसभा 2014 का ये चुनाव बदलेगा या नहीं, ये फैसला आज जनमत का जिस तरीके से मतपेटियों में बंद हो गया है, ये 16 तारीख को आने वाले नतीजों के साथ भी साफ हो जाएगा कि इस बार जनता ने मोदी की लहर का साथ दिया है या सत्ता में सियासत के साथ चलने के अपने फैसले को उसने हिमाचल में नहीं बदला है। हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों की बात करें तो 4 लोकसभा की सीटें हैं, 47,40,000 मतदाता हैं और लगभग 38 प्रत्याशी लोकसभा के इन चुनावों में हैं। बड़ी और बात देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो वोट डाल चुके हैं, अपना मत जो है वो डाल चुके हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनका पूरा परिवार रामपुर में अपना वोट डाल चुका है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हिमाचल के इन चुनावों में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने जीत के पूरे दावे उनकी बदौलत जरूर जताती आई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शांता कुमार बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा के, जिन्होंने पालमपुर में अपना वोट डाला है। अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जिन्होंने हमीरपुर में जो उनका अपना चुनावी हलका है, वहां पर पूरा परिवार जो है उनका मत डाल चुका है। तमाम नेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही रहा है कि जनता से जुड़े मुद्दे, जिन्हें महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ अगर बात करें तो भ्रष्टाचार की बात जरूर होती रही है, लेकिन जनता के मुद्दे नेताओं की जुबान पे हो ना हो, जनता की जुबान पर जरूर रहे हैं। और इन चुनावों में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ जिस तरह से फोकस में ये चुनाव आया है, तो उसको लेकर जनता ने बराबर एक जवाब जरूर दिया है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। हमारे साथ इस समय अगर हम देखें तो यहाँ पर एक युवा मतदाता, पहली बार 18 साल के युवा वोटर्स हैं जिन्होंने मतदान किया है। हमारे साथ यहाँ पर एक युवा चेहरा है जिन्होंने पहली बार मतदान भी किया है और चुनाव आयोग ने उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया है। हम उन्हीं से जानते हैं, आपको ये प्रमाण पत्र मिला, वोट आपने डाला, कैसा महसूस करती हैं और क्या समझ रही हैं?
सर अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट डाला है। वोट डालने से पहले तो ऑब्वियसली हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश साबित हो रहे हैं। एंड यस वी फील कॉन्फिडेंट कि हमारा वोट काउंट किया जाएगा एंड जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो जीतेगी एंड फिर जीत के इंडिया में तरक्की भी होगी, डेवलपमेंट होगी, तो इट फील्स गुड। आप अच्छा महसूस कर रही हैं। ये प्रमाण पत्र आखिर ये क्या याद दिलाता रहेगा, और सरकार अगर बात करें तो युवा किस तरह की चाहते हैं? ये प्रमाण पत्र जब भी देखेंगे तो हमेशा यही याद दिलाएगा कि पहली बार वोट डाला था। हर चीज़ की पहली बार आती है, तो पहली बार वोट भी डाला। तो जहाँ तक हम बात करें कि हमें कैसी सरकार चाहिए, डेफिनेटली ऐसी तो चाहिए जो झूठे वादे तो ना करे, मॉब को स्वे अवे ना करे, कम से कम जो वादे किए हैं वो उन पे खड़ी उतरे। एंड जो इतने सारे बेरोज लोग हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड हायर लेवल पे बात करें तो करप्शन शुड बी रिमूव। युवा मतदाताओं की बात करें तो भ्रष्टाचार वो नहीं चाहते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर एक बात जो पूरे देश के भीतर आई है, केजरीवाल के मूवमेंट के साथ, अन्ना के मूवमेंट के साथ भ्रष्टाचार को मिटाने की बात युवाओं ने की है, और वो देश में एक अच्छी सरकार चाहते हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने भी मतदान किया है, उनसे भी जानेंगे। मतदान आपने किया है, लेकिन चुनाव में जो शोर सुनते रहे हैं, मुद्दे आपको लगता है जनता के उठे हैं या कुछ और आप सुनते रहे? जनता के उठे हैं मुद्दे बहुत सारे। किन मुद्दों को जनता चाहती है? एक महंगाई और भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट। हम प्रतिक्रियाएं लोगों की देख रहे हैं, चाहे वो युवा चेहरे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। बात वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात भी हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के जिन सवालों को यहाँ राजनेताओं ने उठाया, उस पर मूक समर्थन जनता का यही है कि वो एक अच्छी सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं चाहते, और देश में विकास अपने राज्य का भी चाहते हैं। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਜਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। राखवी सीट शिमला तो भाजपा उम्मीदवार वीरेंद्र कश्यप ने अपने परिवार सने अपने हक का इस्तेमाल किया, जबकि इथों खड़े कांग्रेस से तनीराम शांडिल ने भी अपनी वोट का इस्तेमाल किया। हमीरपुर तो भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ते अपनी पत्नी नाल वोट पान पहुंचे। परिवर्तन की लहर चल रही है, और ये परिवर्तन की लहर के साथ साथ मोदी जी की लहर चल रही है। सरकार बदलो हालात बदलो का नारा दिया था। अब देश की और प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस जो सरकार की रही है उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों की नफरत सामने नजर आ रही है, और अमेठी में भी भाजपा कमल का फूल खिलाने जा रही है। वहाँ का युवा भी कांग्रेस के युवराज के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। 10 सालों में वहाँ के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए, और प्रदेश में भी युवा कहता है, कांग्रेस ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाए। अब वो जवाब मांगता है, अमेठी में नहीं कर पाए, हिमाचल में नहीं कर पाए, देश में नहीं कर पाए, तो देश का युवा अब मोदी जी से उम्मीद लगाकर बैठा है। बड़े नेताओं का फैसला जिस तरीके से आज 4 लोकसभा सीटों पर होना है, जिनमें शांता कुमार, अनुराग ठाकुर और प्रतिभा सिंह, ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनके भाग्य का फैसला आज राज्य के 47,40,000 मतदाता जो हैं वो मतपेटियों में बंद कर देंगे। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, क्योंकि बड़े चेहरों ने यहाँ पर वोटिंग के लिए अगर हम बात करें तो वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री है, उनका पूरा परिवार रामपुर में वोट कर चुका है। और बिल्कुल सामने आप देखेंगे, बिल्कुल मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं, आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हर बार वोट डालने के लिए शिमला जरूर आते हैं, और इस बार भी वो वोट डालने के लिए आए हैं और पत्रकारों से इस समय रूबरू हैं। पत्रकारों से रूबरू होने के साथ आनंद शर्मा एक बात को जरूर कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनावों को लेकर आंकलन मीडिया के भीतर आते रहे हैं, दावे भाजपा जो कर रही है वो डॉक्टर्ड है, और कांग्रेस जो है दोबारा सत्ता में आने की पूरी तैयारी और मंशा के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हिमाचल में कांग्रेस मजबूत है। हमारी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, देश में भी और हिमाचल में भी। हिमाचल के मतदाता परिपक्व हैं, बुद्धिमान हैं। हिमाचल में 4 सीट पर कांग्रेस मजबूत है और हम विजयी होंगे।
ਇਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ 1952 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ 57 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 93 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 92 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। इतना उम्र पाते हुए भी लुट खुदाते हुए मैं आकर के वो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, वोट दे के जा रहा हूँ। सब मतदाताओं से मेरी दुआ है कि कोई मतदाता खाली ना रहे, सब आकर के अपना मतदान यहाँ अदा करें। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਤਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला गुरुजी से मिलने के लिए खास तौर पर किन्नौर आए और उस मुलाकात का हर वो पल गुरुजी को आज भी याद है। गुरुजी, नवीन चावला जी आपसे मिलने के लिए आए थे, किस तरह की याद आपके उस बात को लेकर है? सबसे पहले वोटर जो आप हैं, इस बात पर वो मेरे से मिलने आए। जब वो मिले तो मुलाकात के समय और क्या चीज जो है हमेशा जिंदगी भर आपको याद रहेगी? ये फूल भेंट किया उन्होंने, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात आती है। ये फूल आपके लिए क्या मतलब रखते हैं? आप जिंदगी भर संभाल कर रखेंगे इसे? बिल्कुल, जहाँ तक हो सके इसको मैं संभाल कर रखूँगा जी। तो ये वो निशानी के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला पुष्प का ये जो गुच्छा है गुरुजी को जरूर सम्मान के तौर पर देकर गए। फूल तो जरूर सूख गए हैं, लेकिन उनसे मुलाकात की हर याद आज भी उनके दिलों पर ताजा है। ਸ਼ਾਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। मेरे अंदर का हिसाब तो ऐसा है जी, मैं तो यही सोचता हूँ पार्टी को क्या देखना, आदमी को देखना है कि कैसा आदमी है, कैसा काम करने वाला है, आया ईमानदार है या आगे उसकी पहुँच है, कितना काम करने वाला है, ये इस लिहाज से हम वोट देते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले कैंडिडेट गांव की एक सलाह पर वोट देते थे, परंतु वो चीज़ आज नहीं रही। अब वो गांव के गांव पार्टी बनकर पार्टियों में वोट दे रहे हैं जी। तो कैसा लगता है आपको? तो ये सिलसिला ज़रा हमें गांव की एकताएं ख़त्म हो रही है, तो हर एक काम जो है कुछ पार्टी के लिहाज से काम हो रहा है, तो इस तरह से गांव की एकता ख़त्म है। गांव की एकता खत्म हो गई जिस तरह से चुनाव अब नए दौर का आया है। हाँ जी। तो ये अच्छा लगता है या दुखता है? ये दुखता है जी। गांव की एकता तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। गांव की एकता अगर कहें तो नए दौर के मतदान ने कम से कम किन्नौर में गुरुजी के मत में तोड़नी शुरू कर दी है, और वो ही उनके दिल की एक टीस भी साथ में बनी है। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗੜਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਆਚਾर्य 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਨਮੁਨ ਸੇਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਮੁਨ ਸੇਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਚਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਸਾਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਾਲੂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੋਂਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੇਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੜਵਾਲ ਤੋਂ BC ਖੰਡੂਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ TDP ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਗਜ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਗਜ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। भाजपा को उम्मीद है कि दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे और हिमाचल भाजपा के नेताओं को ये उम्मीद है कि अगर नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे तो हिमाचल से 2 बड़े चेहरे अनुराग ठाकुर और शांता कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जरूर होंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है ना तो मोदी का सपना पूरा होगा और ना ही भाजपा के नेताओं का। तो हिमाचल की इस खास पेशकश में इतना ही। शिमला से अपने चंडीगढ़ से आए कैमरामैन सहयोगी इंद्रजीत के साथ अरुण उनियाल, PTC न्यूज़ शिमला। और इस कार्यक्रम के साथ ही आप देखते रहिए PTC न्यूज़। Associate sponsors Lloyd AC.